itself or in any other scheduled bank. To be invested in government securities and in bonds, redeemable capital, debit securities, and instruments issued by the Pakistan Water and Power Development Authority, and in listed securities subject to the condition as may be prescribed by the Commission. Next. Right to see bank receipt for the money and securities. Any person depositing any money or security or making any contribution shall be entitled to request made in this behalf to the company or the person concerned or to be trustees as the case may be to see the उसके बाद receipt of the bank or other body for any such money deposit or security as it is referred as is referred to in that section. Next. Plenty for the contravention of the section 226, 227 or 228. Whoever contravenes or authorize or permit the contravention of any of the provision of the section 226 or the section 227 or the section 228 shall be punished with a fine which may extend to 5,000 rupees and shall also be liable to pay loss by the depositor of the security or the employee or account of such contravention. Next. Books of account to be kept by the company. Every company shall keep its register of its proper book of account with respect to all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which the receipt and the expenditure एक सेकंड रुकें जी कुरुतुलन आपने हैंड रेज किया हुआ जी कुरुतुलन अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज उन्होंने अपना हैंड डाउन कर लिया बेहतरीन हो गया चलें जी शिवा कंटिन्यू करें ठीक हो गया ओके सर All sale and purchases of the good by the company, all assets of the company, all liabilities of the company, and in the case of the company engage in production, processing, manufacturing, or mining activities, such particulars relating to the utilization of material or labor or the other inputs or the item cost as may be prescribed. If such class of the companies is required by the Commission by a journal or the special order to include such particulars in the books of account. Next. If fail to the company in respect of the listed company be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 20,000 rupees nor more than 50,000 rupees and with the further fine which may extend to 5,000 rupees for every day after the first during which the default continue. And in respect of any other company be punishable with the imprisonment for a term which may extend to the 6 months and with the fine which may extend to the 10,000 rupees. ठीक हो गया जी खत्म हो गया यहाँ तक टू 231 ऑनवर्ड्स ठीक है शिवा थैंक यू सो मच यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं फवाद साहब जी सर हाँ इकरा प्लीज अपना हैंड डाउन कर लें इकरा जावेद जी मकसूद अहमद साहब आपने कुछ कहना है जी बताएं जी सर ये 230 जो सेक्शन है इसमें ये जो जितनी चीजें मेंशन की हुई है मैं अभी पढ़ रहा था कि इसमें ये जो है ना रिकॉर्ड सारा कंपनी से हट के किसी और जगह पे भी इसको रखना वो जरूरी है इसका कोई मकसद सर क्या हो सकता है आप बताएं कॉमन सेंस क्या बनती है कि रिकॉर्ड दो जगह पे क्यों होना चाहिए मेरे नजर जस्ट वो सेफ्टी के हवाले से इसके अलावा और कोई नहीं बनता एक तो सेफ्टी के हवाले से भी और दूसरी वजह ये कि अगर एक जगह पे रिकॉर्ड फॉर्ज हो जाए या उसको किसी तरह ऑल्टर किया जाए तो आपके पास ऑल्टरनेटिव एविडेंस मौजूद हो राइट ठीक हो तो गया जब सब लीगल ये सारा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो जाता है तो फिर एक तो कंपनी में भी मौजूद है फिर थर्ड एक जगह पे दो जगह अच्छा पे पहले देखें ऑर्डिनेंस कब बना था उस वक्त के हिसाब से आप सोचें दो जगह पे बुक कीपिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए सेफ्टी रीजंस भी हैं कि रिकॉर्ड जल जाते हैं और उसके बाद फिर नुकसान तो शेयर होल्डर्स का होता है ना कंपनी में अंडरस्टैंड करें कि मैनेजमेंट और ओनरशिप दो फर्क चीजें हैं हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है सिंपल सी बात है
तो बात ये है कि दो जगह पे रखना पहले होता था, अब जो नई अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर ये भी है कि अब आपकी जो बुक्स होती हैं वो आपके ईआरपी सिस्टम में होती हैं, वो मैनुअल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, सारी डिजिटल होती हैं। फिर वो आपके पास एक्सेल शीट्स में होती हैं, उसके अलावा प्रिंटेड आपकी एनुअल रिपोर्ट्स जारी होती हैं, और उसके अलावा अब मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो क्लाउड बैकअप्स रखती हैं अपने, ठीक है, मतलब गूगल के बैकअप्स के ऊपर। और फिर खैर डेडिकेटेड ऐसी कंपनीज है, मेगा है, डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, जो Amazon के सर्वर्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो वो आपके पूरा का पूरा जो आपका डाटा है उसको बैकअप करके रखती हैं। अगेन द पर्पस इज द सेम। राइट सर, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। जी फवाद साहब, हमें हमारे पास कितना टाइम है इस मीटिंग में? नो प्रॉब्लम सर, 15 मिनट हो चुके हैं और 25 मिनट और है। अच्छा, फिर तो बड़ा टाइम है, बेहतरीन है, ठीक हो गया। चलें जी, कंटिन्यू। ये वाले लोग मिस मरियम एहसान, मिस दरियाब, ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मरियम एहसान। सर मैं स्टार्ट करूं? हेलो जी मरियम प्लीज करें स्टार्ट। ओके, मैंने कहा पूछ लूं, मेरी आवाज आ फवाद रही है? आपने मुझे गलती से म्यूट कर दिया था, आई थिंक। सॉरी, माजरत सर, मैं फवाद साहब मकसूद को करना चाह रहा था। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इट्स ऑल राइट। पहले तो ये लोग अपने हैंड रेज करें ना, दोबारा से फिर उस पे आते हैं। स्लाइड 1 पे चले जाएं जहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं, फातिमा, जरियाब, मरियम और कौन है जी, तलहा। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, I hope all is well with you. I am starting my presentation from section 231. Inspection of books of account by registrar. The registrar or any other officer authorized by the SECP can inspect the books and papers of every company. The authorized officer shall notify the company the date, time and place of inspection of the books et cetera. Section 232, default in compliance with provision of section. It made complying with the provision of section 231. Every person who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 10,000 rupees. It's clear? Where a director or any other officer, hello, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी जी जी। Where a director or any other officer of a company has been convicted of an offense under this section, he shall on and from the date on which he is so convicted be deemed to have vacated his offense as such, and on such vacation of office shall be disqualified for holding such offense in any company for a period of 5 years. ये आपने हमें बोल के बता दिया, थोड़ा समझाएं भी ना, आपने तैयार किया हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ था? ओके सर, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो रजिस्ट्रार है उसमें जो भी ऑथराइज पर्सन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर्स वगैरह को चेक करना और डेट, टाइम और प्लेस इंस्पेक्शन के लिए डिसाइड करना। और अगर डिफॉल्ट, अगर किसी भी वजह से ये डिफॉल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है तो उसके लिए जो है वो पनिश जो है उसका क्राइटेरिया मेंशन है कि उसको फाइन किया जाएगा विच इज नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। और जहाँ पे डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हैज बीन कन्विक्टेड, वो 5 साल तक जो है वो इस पोजीशन के लिए कहीं भी जो है अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, कैरी ऑन। ओके ओके, थैंक यू सर। सेक्शन 233, annual accounts and balance sheet. According to the law, it is the duty of the directors to arrange preparation of the, simply इस सेक्शन में बताया गया है कि जो भी प्रिपरेशंस होती हैं एनुअल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जितनी भी प्रिपरेशन जो है रिक्वायर्ड होती हैं वो डायरेक्टर जो है वो अरेंज करते हैं बिफोर AGM. Section 234, content of a balance sheet. Every balance sheet of a company shall give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of its financial year. Section 234, the balance sheet and profit and loss account are the income and expenditure account shall in the case of listed company. इसमें दो कंडीशन है, अगर लिस्टेड कंपनी है उसके लिए क्या क्राइटेरिया और अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए क्या है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें इम्प्रिजमेंट जो होगी वो 1 ईयर के लिए होगी और उसमें जो फाइन किया जाएगा वो उसकी रेंज होगी 20,000 से 50,000 तक होगी।
और फर्दर फाइन भी इसको हो सकता है जो 5000 होगा पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। एनी अदर कंपनी जो भी लिस्टेड कंपनी के अलावा कंपनीज होंगी उसके लिए इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो 6 मंथ होगी और जो फाइन होगा वो 10,000 रुपीज जो है वो चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ रेवुलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स की, यहाँ पे रेवुलेशन ऑफ एसेट्स की जाती है एवरी ईयर की जाती है। फ्रेश रेवुलेशन ऑफ एसेट्स किसको बोलते हैं? इट इज द सिचुएशन इन व्हिच द करंट वैल्यू ऑफ एसेट इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ करंट प्राइस। रीवैल्यूएशन, हाँ जी, रीवैल्यूएशन, ओके, रीवैल्यूएशन की जाती है एसेट्स की। फ्रेश रीवैल्यूएशन भी इसको कहते हैं एसेट्स की जब करते हैं, तो इसमें जो करंट वैल्यू एसेट्स की होती है वो करंट प्राइस पे ही की जाएगी। अपॉन रीवैल्यूएशन देयर में अराइज आर सरप्लस, इस सिचुएशन में सरप्लस और डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। जो डेफिसिट होगा जनरली रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ इट सिचुएशन ऑकरेंस वेयर इज द सरप्लस इज नॉट टेकन एज अ प्रॉफिट टिल इट इज एक्चुअली रिलीज्ड। ओके, रियलाइज्ड, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें देखें, ये चीज उन्होंने मेंशन की हुई है कि अगर आप एक्सपेंस दोबारा से एक्सीड कर जाते हैं अगर रेवेन्यू को। जी सर, जी, बोलिए। अगर रीवैल्यूएशन होगी सो करंट प्राइस के ऊपर, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका कोई एक पर्टिकुलर एसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है गाड़ियां, ठीक है। फर्ज करें कि उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो आप जब अपनी गाड़ियों की डेप्रिसिएशन के बाद भी उनकी रीवैल्यूएशन करते हैं तो ऐसा होता है कि जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसके बावजूद भी जो आपकी गाड़ी है उसकी जो वर्थ है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो ज्यादा है। तो ज्यादा वर्थ को आप रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन आप उसको उस वक्त तक आप उसको मेंशन तो करते हैं लेकिन आप उस वक्त तक उसको उस वक्त तक आप उसको सरप्लस के तौर पे लेते नहीं है जब तक कि एक्चुअली वो रियलाइज नहीं हो जाता, अनलेस यू डू इट। हाँ, अमोर्टाइजेशन एसन, बिल्कुल ठीक है, मैं ये वर्ड खुद अवॉइड कर रहा था, ठीक हो गया। अच्छा, तो पहली बात ये कि ऐसे होता है। और अगर फॉर एग्जांपल कि किसी चीज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई हो तो फिर क्या होता है? क्या डेप्रिसिएशन जिस तरह से चल रही होती है, ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा मरियम, ये मेरा क्लास से क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि जब अगर फॉर एग्जांपल उसकी जो वैल्यू है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो कम आती है तो क्या डिप्रिसिएशन जो है वो कंटिन्यू होगी जस्ट लाइक जैसे पहले चल रही थी, या फिर पहले आप उसको करंट मार्केट प्राइस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे और फिर वो कंटिन्यू करेंगे? और पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि व्हाट इफ इस साल उसकी प्राइस कम हुई, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया जो एक्स्ट्रा था, और अगले साल उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई? मतलब ऐसे ही है कि एक गाड़ी है, इस साल प्राइसेस कम हो गई, अगले साल रुपी टू डॉलर पैरिटी की वजह से प्राइसेस ज्यादा हो गई, तो अगले साल उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मुझे इसका आंसर कौन करेगा क्लास में से? जी कुरतलैन। सर मैंने तो अपने क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया था, लेकिन ये जो एसएस की जो अच्छा रुकें, फिर आप रुकें। जी इकरा जावेद। सर अगर आज जो है वो उसे राइट ऑफ किया और कल को उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका पहले आंसर पूछना है। जी इकरा कैरी ऑन करें, यही पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर आज प्राइस कम हुई है और कल को ज्यादा हो गई है तो फिर हम जो पिछली प्राइस थी उसी पे ही करेंगे। हर साल फिर दोबारा से अपनी बुक्स चेंज करेंगे? नहीं सर, उसकी जो प्राइस पे हमने खरीदा होता है सर उसी पे ही करते हैं। ठीक हो गया। जिस प्राइस पे हमने राइट ऑफ किया होता है। ठीक है जी मुकद्दस जी बताएं। सर ये सेक्शन जो है वो इसके मुताबिक मतलब ये क्लियरली कह रहा है कि अगर डेफिसिट है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे और अगर प्रॉफिट है, सरप्लस है, तो उसको प्रॉफिट में ले जाएंगे। तो अगर एक साल मतलब वो ऐसे आ रहा है कि प्रॉफिट में तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक रियलाइज नहीं होगा। रियलाइज नहीं, जी ऐसे ही है। मतलब जो सर मतलब अनरियलाइज्ड इनकम में रख लेंगे और जब रियलाइज होगा तो इनकम बुक हो जाएगी। और अगर अगले साल कम हो गया फिर क्या होगा? सर कम हो गया तो जिस साल में कम हुआ है उस साल उसको मतलब राइट ऑफ में बुक हो जाएगा। सेक्शन तो यही कह रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। एसएम आप कुछ कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं बेसिकली डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
तो बेसिकली बिल्कुल जब सही। डेप्रिसिएशन की मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्रीज करता था और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन की, फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है या एक व्हीकल है जिसको हमने 2 मिलियन 20 लाख का परचेज किया है, तो अब अगर नेक्स्ट ईयर मैं उसकी 10% के हिसाब से उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन करता हूँ, तो वो बेसिकली ये वही उसकी डेप्रिसिएशन है जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो 1.8 मिलियन रह गई है। तो जो मेन उसकी जो वैल्यू है बुक मार्क वैल्यू 2 मिलियन, वो तो एज इट इज रहेगी अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है वही बेसिकली डेप्रिसिएशन है। एंटीसिस की होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर अगले साल उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, फिर क्या करेंगे? सर मेरी बात आपने सर देखिए आपने नहीं एसएन, एक मिनट मुझे एसएन से बात करने दें, एक सेकंड। जी जी अगर सर, वो अगर अगर एसएन, हाँ जी जी सर बताएं पूछें, मैं आप ये पहले कह रहा पूछें। हूँ कि अगर आपने डेप्रिशिएट कर दिया एक एसेट को, ठीक है, जी जी और अभी फॉर एग्जांपल आफ्टर डेप्रिसिएशन उसकी इस वक्त जो बुक वैल्यू आपके पास आपकी बुक्स शो कर रही हैं वो ये है कि वो 1 मिलियन है, लेकिन अगले साल उसकी जो करंट वैल्यू हो जाती है 1.4 मिलियन हो जाती है, उसको कैसे क्या करेंगे उसका? 0.4 सर मिलियन तो आपको पता है। जी जी सर, क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड है। बेसिकली पाकिस्तानी कल्चर में या कंपनीज में ये जो व्हीकल्स या जो मैनेजर्स को दी होती हैं, इनमें फ्लक्चुएशन तो व्हीकल्स की प्राइस में इतना आता है, लेकिन वो इतना नहीं आता या वो इतना डीपली वर्किंग नहीं करना चाहते हैं प्रॉपर अकाउंट्स में, या शायद मैंने जहाँ पे काम किया एप्रिसिएशन बहुत कम हुई है यानी कि अमोर्टाइजेशन। तो अगर वो किसी गाड़ी की वैल्यू 20 से 22 लाख पे चली भी गई है तो वो उसको फॉलो नहीं करते प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स को, और आई थिंक इस केस में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो एप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन नहीं होगी। जो जिस जिस वैल्यू के ऊपर आपने परचेज किया वो होता है, मैं फिर आपकी बात से एग्री करता हूँ। यूजुअली कंपनी करती हैं वो अपनी बुक्स को नहीं करती, वो उसी कॉस्ट के ऊपर उसको डेप्रिशिएट होने देती हैं, लेकिन अगर उनको वो एसेट डिस्पोज ऑफ करना होता है तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल उसका जो गेन आता है, वंस अगेन इसमें ये चीज भी हो जाती है, उसको वो रियलाइज कर लेते हैं। लेकिन कई दफा ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रनिंग के अंदर होते हैं, आप उनको चेंज करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ना जो यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है ना वो आवर्स में होती है कि कितने आवर्स के लिए चलना है, ठीक है। तो कई दफा ऐसा होता है कि कुछ इंडस्ट्री लीडिंग जो एयरलाइंस है उनका रूल होता है कि अगर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि ये 10,000 आवर्स के लिए आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, तो वो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि वो उसको 8,000 आवर्स के ऊपर चेंज करने का रूल बना देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं बहुत एग्जैक्ट होती हैं, बट वंस अगेन इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन कि होना क्या चाहिए अगेंस्ट के होता क्या है, बस दैट्स अबाउट इट। जी मरियम कंटिन्यू करें आप। उमर जुल्फिकार ओके जी सर। आपने हैंड रेज किया है। जी 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 उमर। जी सर, ये एसेट की बात हो रही थी प्रेमिसेस पे। अगर कोई मशीनरी है किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है वो 0 आ जाए, लेकिन वो स्टिल उसके प्रेमिसेस में उसका यूज हो रहा है, तो उसका क्या होता है? मतलब वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है या नहीं होती? पहली बात तो ये, अगर अगर वैल्यू जो है वो उसकी 0 आ जाए, और जीरो वैल्यू जीरो वैल्यू कैसे आ जाए, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद 0 कैसे हो जाए वैल्यू, बताएं। ऑफ कोर्स सर वो राइट ऑफ उसकी डिफरेंस में उसको कह रहे हैं। उसकी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, मार्केट प्राइस कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ना। आप अपनी बुक्स के अंदर उस वक्त तक, जब तक कि आपने उस एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उस वक्त तक आप उसकी एंट्री नहीं कर सकते कि आपने इसको निकाल दिया है। उसको निकालें, चाहे उसका लॉस हो, चाहे उसके ऊपर उसकी करंट बुक वैल्यू जो भी आपने हो, चाहे उसके ऊपर आपके पास कोई गेन आए। यूजुअली एसएन ने बिल्कुल सही बात की है, एप्रिसिएशन ही होती है, आपको कोई फायदा ही होता है उससे, लेकिन अगर वो है जब तक पड़ा हुआ है तो उस वक्त तक उसकी जो डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू है वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जितनी भी बच जाए। और अगर नहीं भी है, जब तक एसेट आपके पास है तो यू हैव टू मेंशन इट। अगर आपका सवाल ये था, मैं सही समझाऊं तो यही जी पूछ सर, रहे हैं आप? बिल्कुल। जी सर। जी हाँ सर, ठीक हो इसका गया जी केस हो मरी। सकता जी है, जी सॉरी, जी अगर मैं फवाद। कि अगर जी एक नहीं जी बोले गाड़ी को 5 इयर्स के लिए डेप्रिसिएट स्ट्रेट लाइन मेथड पे किया है तो 5वें साल पे उसकी बुक वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बिल्कुल और सही, इन बिल्कुल द सही। टाइम वो जो है अगर कंपनी के इस्तेमाल में रहती है और वो उसको सेल नहीं करती तो वैल्यू वाइज वो वहाँ पे 0 शो होता रहेगा बुक्स में, और जब उसको सेल किया जाएगा तो स्क्रैप वैल्यू में उससे जो बेच जो के भी जो गेन कीमत आएगा गेन आपको, आया जो भी वो, प्रॉफिट, बिल्कुल। जी, वो तब रिकॉर्ड होगा जब रियलाइज होगा। जी उमर प्लीज अपना हैंड लोअर कर लें। जी एहसन।
You want to say something? सर एक्चुअली जो हम बुक्स में या अकाउंटिंग की बीकॉम लेवल पे करते हैं ना, इनमें तो ये एंट्रीज में स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू को जीरो तक ले जाते हैं, लेकिन रियल केस कंपनीज में ऐसा होता नहीं है कि उसकी वैल्यू जीरो जाए। बुक्स में जो हम अकाउंटिंग करते हैं इसमें तो ये चली जाती है वैल्यू जीरो। वो 50,000 की कोई आइटम है 10,000 करेगा और 5वें साल उसकी वैल्यू बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गुड्स के वो गुड की टाइप किस टाइप की है, तो फिर वो जीरो होती है। जैसे लाइक अदरवाइज ऐसा यूजुअली होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं यही एक बड़ी मुझे खुशी हुई है किसी ने इस बात को आंसर किया है। बात ये है कि जो एक्चुअल एसेट्स की मोडालिटीज होती हैं उसमें कभी भी अगर आपका वो एसेट, गाड़ियां तो हमने बड़ी छोटी सी एक चीज होती है, बिलियंस के बिजनेस में गाड़ी की कोई औकात नहीं होती 2-3 मिलियन की चीज की, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो आपके एसेट्स होते हैं जिनके साथ आप आपके रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स होते हैं, वो कभी भी उसकी मोडालिटीज इस तरह से सेट होती हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, लेकिन कभी भी उसकी वैल्यू एस एन योर राइट वो कभी भी जीरो नहीं होती। इट नेवर हैपेंस, ठीक है। ऑफ कोर्स उसमें मोडालिटीज होती हैं, वो चीजें चल रही होती हैं। जी रिजवान साहब। सर मैं ये बात ऐड करना चाहता था कि जो फिजिकल मशीनरी होती है जिसकी कोई वैल्यू है, मतलब कोई भी मशीनरी उसकी फिजिकल तो प्रॉपर्टी है या वो जीरो बड़ी मुश्किल से होती है, डेप्रिसिएट नहीं होती, स्क्रैप वैल्यू हो जाती है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर भी तो कंपनी ऑन करती है ना अपने बिजनेस में। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो खराब हो जाता है, मतलब वो किसी भी तरह नहीं चल सकता, कोई वायरस आ जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल वो कोई सेल हो उसकी कोई वैल्यू हो, तो उसकी वैल्यू तो जीरो हो ही जाती होगी। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, देखें आपको अगर आपने कभी किसी टॉप नॉच सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है जैसे ओरेकल है या एसएपी है, तो आपको ये पता होगा कि ओरेकल और एसएपी की बाइंग प्राइस नहीं होती, ओरेकल और एसएपी वगैरह की सब्सक्रिप्शन प्राइस होती है, ठीक है। आप पर यूजर पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उसको क्रिएट भी इस तरह से किया गया है, सो आप उसको ओन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बाय किया हुआ है, आपके पास सोलली उसके राइट्स हैं हर तरह से उसको इस्तेमाल करने भी, और सॉफ्टवेयर कंप्लीट है जिसमें आपको अपडेट्स और बाकी जो चीजें हैं वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट कैन फिर भी आपको कोई ना कोई उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लेकिन ये आपके डिसीजन और मोडालिटी ऑफ द कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी अकाउंटिंग को लेके कैसे चलना चाहते हो, ठीक है। दैट्स इट आई थिंक। चलो जी मरियम कंटिन्यू करें। ओके सर, सेक्शन 236 डायरेक्टर्स रिपोर्ट। The director's report to the member of the company is an important document. In this report, directors not only specify the salient features of the current year's financial statement, but also highlight the state affairs of the company. The working conditions and the future prospects of the company are also discussed in this report. It is compulsory for every company to send to every member of a company a copy of director's report along with the profit and loss account and the balance sheet at least 21 days before the AGM. Next slide, please. Section 235. 237. Ji, sir. Consolidated financial statements. The auditors of the holding company shall review the consolidated financial statement and report on the prescribed from 35C. सर ये मुझे ये क्लियर नहीं है, सेक्शन थोड़ा सा कर दें। ये कोई फॉर्म का नंबर होता है 35C? बिल्कुल जी, फॉर्म का नंबर ही है जी। इट्स अ फॉर्म, दैट्स इट। इतना बहुत है आपके लिए, इसकी डिटेल में ना जाएं, छोड़ दें। ओके। सेक्शन 238 फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सॉरी, आपने अभी एक बात की है, मैं लाइक फॉर्म 29 बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हो। अच्छा, सो बात ये है कि अभी आपने ये चीज मेंशन की है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग ये जो चलें क्लास पार्टिसिपेशन की हद तक और लर्निंग की हद तक, मैं भी आई वाज आल्सो स्टूडेंट सो आई अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, ठीक है ना। लर्निंग की हद तक और क्लास पार्टिसिपेशन की हद तक ये ठीक है कि आप बताएं कि जी आपने सेक्शन में ये एक पॉइंट था वो मिस कर दिया है। किसी का माइक अनम्यूट है। मरीम एक मिनट अपना माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, अजान हो रही है शायद। जी ओके। तो मैं ये बात कर रहा था कि क्लास पार्टिसिपेशन की हद तक निटी ग्रिटीज पॉइंट आउट करना कि जी ये वाले सेक्शन की ये वाली चीज, अनलेस कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, मेंशन करना बहुत अच्छी बात है कि चलो पता चल जाए सबको कि इसमें ये एक्स्ट्रा चीज थी, बहुत अच्छी बात है। सीपी भी आप लोगों की मैं काउंट करता हूँ, लेकिन आई थिंक वंस अगेन आई विल गो बैक टू व्हाट आई सेड। ये जो पूरे सेक्शंस हैं और ये जो पूरी ऑर्डिनेंस है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ये आप लोगों को याद हो जाएगी, एक एक सेक्शन आपको आता होगा
और मैं आपसे पूछूंगा कि इस सेक्शन के अंदर अगर ये 4 सजाएं दी हुई थी तो इसकी एग्जैक्ट मॉडलिटीज क्या थी, मतलब फाइन कितना था, इम्प्रिजनमेंट कितनी थी, लीगल एक्शन क्या था, कोर्स ऑफ एक्शन क्या था। मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता हूँ कि ये मुझे भी नहीं आता, ये किसी को भी नहीं आता। नोबडी कैन से कि मुझे पूरा ऑर्डिनेंस जो है वो जुबानी याद है। आइडिया इज कॉन्सेप्ट, आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि क्या करने से क्या होता है। वंस अगेन मैंने आपके क्विजेस में भी आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछी हैं, मैं आपके फाइनल में भी आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछूंगा। पॉइंट आउट करें, वैल्यू एडिशन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पिकिंग ऑन योर फ्रेंड्स डोंट डू दिस। ठीक है, अपने क्लास फेलोज को पिक ऑन करने के लिए ये काम ना करें। और आखिरी बात ये है कि वंस अगेन आई विल ओनली आस्क कॉन्सेप्ट। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा सेक्शन 237 में क्या लिखा हुआ था, दैट्स इररेलेवेंट, फजूल सी बात है ये किसी को भी नहीं पता, शायद किसी लॉयर से ही पूछे उसको भी नहीं आता होगा। ठीक है जी मरियम, कंटिन्यू करें, जब अजान खत्म हो जाए तो आवाज काफी ज्यादा थी इसलिए कह रहा हूँ। सर मेरे राइट साइड पे मस्जिद है तो आवाज ऐसे ही आएगी, अभी खत्म होने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आप खत्म हो गई है तो फिर आप साथ वाला घर ही अल्लाह का। माशाल्लाह जी, हम वेट कर लेते हैं। ओके सर, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी मैडम करें स्टार्ट। Financial year of holding company and subsidiary. The directors of a holding company shall ensure that, except where in their opinions there are good reasons against its financial year of each of its subsidiary coincides with the company on financial year, the SCCP may authorize a holding company or any of its subsidiaries to prepare and एक और छोटी सी मरियम, एक छोटी सी करेक्शन, इट्स सब्सिडरी, इट्स कॉल्ड अ सब्सिडरी। जी सब्सिडरी, ठीक है, ओके। Thank you sir. Subsidiary. The SCCP may authorize a holding company or any of its subsidiaries to prepare and lay before the annual general meeting its financial statements or a longer or shorter period as is required by law. In such situation, the relaxation is also granted in holding of the AGM meeting, submission of accounts and filing of an annual return. Next slide, please. Section 239, rights of holding company, company's representatives and members. A holding company may resolution authorize representatives named in the resolution to inspect the book of account kept by any of its subsidiaries, and the book of account of any such subsidiary shall be open to inspection by those representatives at any time during business hours. वो चेंजिंग करवा सकते हैं बुक्स में, अगर कोई भी उसके लिए उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये जो भी सारा क्राइटेरिया उन्हें बिजनेस आवर्स में ही करना पड़ेगा। The rights conferred by section, यहीं पे होल्ड करें, 2 मिनट्स रह गए हैं, फवाद ने बताया, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अभी जल्दी बंद होने से पहले फवाद ने ये जो कुछ चीजें चैट के अंदर टाइप की हुई हैं, ठीक है, डिटरमिन्ड यूजफुल लाइफ के ऊपर, मुझे आपने याद कराना है जब हम लोग रीजॉइन करेंगे। सो आई विल गिव यू एग्जांपल एविएशन की दोबारा, जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, ठीक है। 120 हुए हैं। फवाद साहब बता दें, आपको क्या लगता है, ब्रेक चाहिए या फिर हम कंटिन्यू करें? मुझे कोई इशू नहीं है। सर मेरे ख्याल में 20 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं नमाज के, उसके बाद चलें, ठीक है। 120 हो गए जी, 140 पे रीजॉइन करते हैं सब, ठीक है जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके।